નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો ઉવજ્જાયાણં, નમો લોએ સવ્વસાહુણં. એસો પંચણમુકારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. નમઃ શ્રીવર્ધમાનાય નિર્ધૂતકલિલાત્મને સાલોકાનાં ત્રિલોકાનાં યદ્વિદ્યાદર્પણાયતે યદ્વિદ્યાદર્પણાયતે. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકં. પ્રભુ તત્વલોચનદાયકં. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. જય સદ્ગુરુ વંદન. જય સદ્ગુરુ. દરેક વસ્તુ માટે આવશ્યક ગાંભીર્યતાની આવશ્યકતા છે. આપણે જે વચનોનું ચિંતન કરી રહ્યા છીએ એના માટે ખુરશી ટેબલ યોગ્ય વસ્તુ નથી. ત્યાં ખુરશી ટેબલ પર બેસવું પડતું. જ્યાં સુધી આપણે નીચે બેસી શકીએ, આસન લગાવી શકીએ, ત્યાં સુધી ખુરશી પકડવી નહીં. પછી તો ધીમે ધીમે પકડાશે જ. તો ઉંમર પ્રમાણે પકડાશે. એકવાર અમે બહાર પ્રવાસમાં હતા ને, રાતના પેલો સત્સંગ થઈ જાય અને પછી કોઈક ને કંઈક ક્વેશ્ચન હોય તો એક ભાઈને સમયસારમાં કંઈક પૂછવું હતું, એટલે સમયસાર લાયા. આમ એકદમ સામાન્ય સહજ બેઠા હતા, તો સોફા ઉપર બેઠા. હું પણ બેઠો હતો એમને પાસે ખુરશી ઉપર. પછી ખોલ્યો સમયસાર કે ભાઈ આ વસ્તુ મને સમજાતી નથી. પછી વાંચતા હતા, એટલામાં ઘરના પેલા બેન ચા લઈને આવ્યા. એટલે પેલા ભાઈ ચાનો કપ લીધો અને એ મતલબ ચાને એક ચુસ્કી લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા અને એક બાજુ પેલો વાંચવાનો પ્રયત્ન કરતા. પછી એમણે વાંચ્યું, આ સમજાતું નથી, આપ સમજાવો તમે. આ એકદમ હકીકત ઘટના છે. એટલે હું કોઈ બોલ્યો નહીં. પછી ફરી ચુસ્કી લીધી એમણે. તો એમ કરતા કરતા એમણે આખી ચા પૂરી થઈ ગઈ.
એટલે એમને એમ કે આમને કંઈ એમને ખબર નથી પડે. તમને સમજમાં બરાબર નહીં આવે, એકવાર તમે વાંચી લો. એટલે એમણે ચોપડી મને આપી. પછી મેં કીધું તમારે ઉત્તર સાંભળવો છે? હા, મારે ઉત્તર સાંભળવું છે. તો તમે એક વાર કોગળો કરીને આવો. એક તો ચા પીધી સમયસર હાથમાં લઈને, બીજું પછી હવે વાત કરતા હતા તો પેલો મોઢો સાફ નહીં કરો, એવામાં જિનેન્દ્રના વચન બોલાય જ ને આપણને. મોઢું ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. આ નાની નાની વાતો છે, પણ આ વિનય કહેવાય છે. આવી નાની નાની વાતો ધ્યાન નહીં હોય તો મોટી વાત ચડે જ નહીં. તમે સમયસર ચડે જ નહીં, સોફા ઉપર સમયસર નહીં ચડે. એના માટે યોગ્ય દ્રવ્ય, યોગ્ય ક્ષેત્રની આવશ્યકતા છે. આ નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખીએ તો એને મોટું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. મોટું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વાળા મોટી મોટી વાતો નથી કરતા, નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખે છે. ને આ અંતરમાં વિનય હોય ને તો થાય, આદર હોવો જોઈએ. કાલે મેં બહેનો બાજુ જો એકદમ ચપ્પલ એકદમ સારી રીતે જમાવેલા હતા, ભાઈઓ બાજુ નહોતા. કોઈક બેનને કરુણા આવી હોય, પણ સારી રીતે એકદમ વ્યવસ્થિત હતા. આપણે અહીંયા ચપ્પલ રાખીએ છીએ. સ્વાધ્યાય હોલમાં આવીએ આપણે પૂજા માટે, સ્વાધ્યાય માટે. પછી ચપ્પલને શું કરીએ આપણે, પેલું સ્ટેન્ડ છે ને, તો સ્ટેન્ડ ઉપર આપણે ઉપર પગ તો નહીં લઈ જઈએ ને, એટલે પહેલાં ચપ્પલ કાઢીએ અને પછી હાથથી ઉપાડીએ, ઉપાડીના સ્ટેન્ડમાં મૂકીએ. એ જ હાથથી પછી આ પૂજાની પુસ્તક પકડીએ, અથવા તો વચનામૃત પકડીએ, અથવા તો સમયસાર પકડીએ. આ શાસ્ત્રોનો અવિનય છે. એવી આ નાની નાની વાતો છે, પણ એનાથી આ આત્મજાગૃતિ કહેવાય છે. छोटी छोटी बातें से व्यक्ति महान बनता है, बड़ी बड़ी बातों से महान बनता. એટલે બધી આપણે ખ્યાલ રાખવા જેવી વસ્તુ છે આખી. આપણે વિષય ચાલતો તો આ જ વાત આવશે. बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात. આ નાની નાની વાતો કોઈ શાસ્ત્રોમાં નહીં લખી હોય, આ તો પાસે રહીએ તો જ સમજમાં ધીમે ધીમે આવે છે. આગળની કડી છે, બૂझी चहत जो प्यास को है बूझन कीरी, पावे नहीं गुरु गम बिना एहि अनादि स्थिर, पावे नहीं गुरु गम बिना एहि अनादि स्थिर. बुझी चहत जो प्यास को है बुझन की रीत. जो अगर आपको प्यास बुझानी है तो है बुझन की रीत. प्यास बुझाने का तरीका है, क्या है? पावे नहीं गुरु गम बिना एहि अनादि स्थित. आत्मानी प्यास होय कि मारे आत्मा प्राप्त करवो छे. प्राप्त करवो छे मतलब कोईने आत्मा अप्राप्त छे? आत्मा कोने प्राप्त नहीं? अत्यारे कोना पासे आत्मा नहीं, तो कोने प्राप्त करो? અહીંયા જ કીધું, એહી અનાદિ સ્થિત, અનાદિકાળથી સ્થિત છે, પણ પાવે નહીં ગુરુ ગમ વિના. એનો ભાન ગુરુ ગમ વગર થાય નહીં. કાલની વાત ફરી આવશે. કઈ વાત?
ઘણા દિવસથી એક જ વાત ચાલે. કઈ વાત ચાલે છે? દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટા ઉપર કરવાની વાત ચાલે છે. આ ઘણા વખતથી ચાલે છે. તો દ્રષ્ટા આપણે પાસે છે કે નહીં પરમાનન્ટ? દ્રષ્ટા કહો જ્ઞાતા કહો, આપણે જે છીએ હંમેશા છે. પણ એ ગુરુગમ વગર એ દૃષ્ટિ દ્રષ્ટા ઉપર થતી નથી. ગુરુગમ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. ગુરુ ગમ. ગુરુ એટલે મહાન, ઉચ્ચ ચેતના, મહાન ચેતના, એનું નામ ગુરુ. ગમ એટલે સમજણ. તો જે મહાન ચેતનાની સમજણ અથવા દ્રષ્ટિ, મહાન ચેતનાની જે દ્રષ્ટિ છે, એ દ્રષ્ટિ જો આપણે ડેવલપ કરીએ તો અનાદિ સ્થિત જે આપણે પાસે જ છે, હંમેશા છે, પરમાનન્ટ છે, આવતું જતું નથી, એ તરત પકડાઈ જાય છે. કાલે ચાલતા હતા તો એક મુમુક્ષુ સાધક વાત કરી કે આ બધી વસ્તુ છે ને, તમે કહો છો એ બરાબર લાગે છે, પણ પેલું ઘરગ્રસ્તીના કામ કરીએ એટલે પેલો ક્યારેક આમ ઇરિટેશન થઈ જાય, ક્રોધ થઈ જાય, બધું થઈ જાય છે ને. તો જ્યારે થઈ જાય ત્યારે તમે છો કે નહીં? ક્રોધ આવે ત્યારે દ્રષ્ટા છે કે નહીં? તો એ જે થઈ જાય છે એનું તો એટલું મહાત્મ્ય છે, વિકારનું તો એટલું મહાત્મ્ય છે, અને વિકારને સાક્ષી રહેવાળા દ્રષ્ટાનું મહાત્મ્ય જ નથી, એટલે એના ઉપર જરા ધ્યાન જ નથી જતું. આ કેવી વસ્તુ છે ખબર? એક તરફ આપણા ગુરુદેવ ઊભા હોય અને બીજી તરફ આપણે કોઈ સંસારની લૌકિક વસ્તુ હોય આપણે પાસે, એના પ્રત્યે આપણે ઘણું આકર્ષણ હોય. તો પેલા ગુરુદેવ ઊભા હોય તોય આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં જાય? અત્યારે ગુરુદેવ તો ઊભા જ રહેશે, એમને તો શું ફરીથી સાંભળી લઈશું તો ચાલશે. આ નારાજ થઈ જાય તો મારું ઘર ચાલે. મહાત્મ્ય પેલા ગુરુદેવ ઊભા છે ને એ વેટ કરે છે એનો નથી, પણ નાની વસ્તુનું મહાત્મ્ય છે. એમ પેલો ક્રોધ આવ્યો, માન આવ્યો, તે સમયે ક્રોધ અને માન એ જેમાં આવે છે, જેમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એવો જે સહજ જ્ઞાન ભાવ છે એનો મહાત્મ્ય નથી, એટલે પેલા ઉપર વધારે દ્રષ્ટિ જાય છે. પરેશાન એટલે કરે છે ને. જ્યારે એવી દ્રષ્ટિ ગઈ એટલે તો બિના નયન કી બાત. આ વારંવાર આપણે ટકોર કરવાની આવશ્યકતા છે. દરેક વખતે આપણે મહાત્મ્ય આપણી વિભાવ પર્યાયને આપી દઈએ છીએ. આ જ આપણો સૌથી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. ભગવાન ઊભા છે, ફુરસત જ નથી એમના તરફ જોવા જરાય. એના વિકારી પર્યાયો નીકળે છે ને, એ એમાં આખો દિવસ લાગ્યા કરે છે. ગુરુગમ જોઈએ. અત્યારે વાત થઈ ને અલકા દીદીને પેલો ચોથો મુદ્દો કયો લીધો હતો? સંતોષ થઈ જાય છે. અમુક પ્રકારની એક સાધના અથવા કંઈક શાંતિ અથવા કંઈ એમાં સંતોષ થઈ જાય છે. આ કલ્પિત ક્ષમતા એવું વાપર્યું છે. મુમુક્ષુતામાં આનંદ વેદાય છે વગેરે. તો અમુક જાતની વિશુદ્ધિતા સંતોષ થાય, સ્વાભાવિક છે. આપણેથી જેટલું થાય એટલું કરી લીધું તો આપણે સંતોષ, માન લો મહાવ્રત ગ્રહણ કરી લીધા,
હવે શું કરીશું? જેટલો થાય એટલો કરી લીધું ને આપણે તો. મહાવ્રત ગણે એટલે આપણે વ્રતો બરાબર પાળે છે, પણ દ્રષ્ટા વ્રતથી જુદો છે. એવી દ્રષ્ટિ તો હોવી જોઈએ. એ દ્રષ્ટાની વિશુદ્ધિ માટે છે, સ્વયં દ્રષ્ટા નથી. આપણા પાસે દ્રષ્ટા છે, પણ એ દ્રષ્ટા અત્યારે આવરી છે, ધૂળ જમી ગઈ છે. આવો જ છે. સાંજે આના ઉપર ચિત્ર પડશે. જ્યારે ચિત્ર પડશે ને ત્યારે આ નહીં દેખાશે આપણને. અને 32 મિનિટ થશે અને પેલું ફિલ્મ બંધ થઈ ગઈ ત્યારે પાછું આ જ દેખાશે આપણને. આ દ્રષ્ટા છે. અને એ દ્રષ્ટા ઉપર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ચેતના ઉપર આ બધા ચિત્રો પડે છે, દ્રશ્યો પડે છે, અને એમાં આ છે ને અલિપ્ત રહે છે કર્મોથી, ભાવોથી. એવી દ્રષ્ટિ હંમેશા જાગૃત કરાવવા વાળા મહાત્મા પુરુષનો ઘણા વર્ષો સુધી જે સમાગમ હોય ત્યારે આપણે આ ગુરુગમ ખીલે છે. સાહેબજી તરત ટકોર કરતા હો, યે મેં નહીં હું, એમ કરીને. કોઈક આપણે સારું આપણે ભજન ગાતા હોય અથવા ક્યારેક કોઈ નિયમ લીધા અથવા ક્યારેક કોઈ પણ પ્રકારનું, એ બહુ अच्छी बात है, करना ही चाहिए, કરવું જ જોઈએ આપણે. इसके बिना भी नहीं होगा, पर ये मैं, ये पाने का साधन है. मैं कौन हूं? हमेशा से जो था, अभी भी हूं और हमेशा रहूं. 3 કાળની વસ્તુ પકડાઈ ગઈ ને એટલે તમારે કશાય તો જાગે જ નહીં. એક રમણ મહર્ષિ एक खास बात लिखी. कोई पूछो ज्ञानी को दुनिया के घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमने सरस बात करी. प्रलय आ जाए, प्रलय, तो भी ज्ञानी के आत्म प्रदेश हिलते नहीं है. उसको प्रलय से कोई लेना देना, प्रलय मात्र उसके लिए एक दृश्य है और कुछ नहीं. उसको ऊंचा प्रकारना જ્ઞાની મહાત્માની વાત કરી તો સંવેદનહીન નથી થઈ ગયા, આત્મામાં દ્રઢ થઈ ગયા છે. વારંવાર વારંવાર આપણે આખા દિવસમાં આપણે પરિણામ કેટલા ઊંચા નીચા થાય છે કે નથી? ને પરિણામ ઊંચા નીચા થાય છે તે સમય પણ આપણે છીએ કે નથી? આપણે માત્ર જ્યારે પોતાને પરિણામ જેટલા જ માની લઈએ ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય છે કે સવારે મારો મન સારો હતો, હવે મન બગડી ગયું. क्यों? हम अपने आप को केवल मन के जितना मानते हैं, हम मन नहीं. और जिन्हें आ वस्तु पकड़ाई जाए ने वो कभी अपसेट हो ही नहीं सकता, और हो कितना 2-5 मिनट. 5 मिनट बहुत हो गए. 5 मिनट से अधिक कोई भी वस्तु के संकल्प विकल्प उसको नहीं चल सकते हैं. सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा. प्रयत्न करीने आ वस्तु पकड़वानो. પછી આગળ કે છે કે हम जो कह रहे हैं वो कल्पना नहीं है. ત્રીજી કડી, एही नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग, कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग. कई नर पंचम काल में
देखी वस्तु अभंग। ये काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, ये ही नहीं है कल्पना, ये ही नहीं विभंग। विभंग का मतलब होता है विपरीत ज्ञान। आगम में, शास्त्रों में विभंग कुअवधि ज्ञान के लिए उपयोग में आता है। विपरीत अवधि ज्ञान जो मिथ्या दृष्टि नारकी वगैरह होते हैं, अथवा जो मिथ्या दृष्टि जीव को भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, तिर्यंचों को भी हो सकता है, देवों को भी हो सकता है, होता ही है उनको तो। और मिथ्या दृष्टि जो नारकी वगैरह उनको भी होता ही है। इसको विभंग ज्ञान कहते हैं। वो आगे पीछे का देख सकते हैं, भाव देख सकते हैं, परंतु वो देख करके उनको राग द्वेषी होते हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है और हमको अपना पिछला जीवन याद है, तो क्या होगा उसको? अब उसके दो घर हो गए, उपाधि बढ़ी। ये घर तो उसका है ही, दूसरा पिछले जन्म का जो परिवार था वो भी याद आ गया उसको। अब कल को याद आ गया कि ये मेरी पत्नी थी, नहीं ये मेरे पति, ये मेरे पिता थे न, वो तो छोटा है, 5 साल का है ना, उसको ऐसी घटनाएं बहुत होती है। फिर बताते हैं वो कहीं जन्म लेता है, अब उसकी पत्नी तो जीवित है, कहीं जन्म लिया, इसके बाद उसको याद आ गया, अब उसकी पत्नी तो 50 साल की, वो 5 साल का है, फिर वो कहता है कि ये मेरी पत्नी थी, अभी भी मानता हूं। तो इससे समस्या बढ़ जाती। ज्ञान नहीं हो और अपने को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है और हमारे पास समता नहीं हो, सच्चा ज्ञान है, तो समस्या बढ़ती है, कम नहीं होती। इसलिए हमको ऐसे भूत भविष्य का ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को इसी में इंटरेस्ट है। आ तमे हमारा हाथ नहीं रेखा जो भाई, શું છે हमारा भविष्य में, और बता दिया तो जो देखते हैं ना वो हमेशा वास्तव में पॉजिटिव ही बताते हैं, सामने वालों को खुश करने के लिए, होता कुछ नहीं है इसमें। ये रेखाएं आपके भावों के अनुसार बदलती जाती है, बदलता है ये सारा चीज, और एक अनुमान। और मान लो बता दिया और कोई ऐसी बात निकली कि तुम्हारे 50वां वर्षे घात छे, ऐसा बता दो, आता है इसमें 50वां वर्षे तुम्हारे लोखंड थी घात छे। अब वो गाड़ी में बैठे तो 50वां साल जैसे ही चालू हो गया, किसी लोहे की वस्तु से वो छुएगा नहीं। गाड़ी में भी अपने 1 वर्ष गाड़ी नो त्याग, डर लगेगा उसको, डरेगा वो व्यक्ति, ऐसा फालतू में क्यों आबेल मुझे मार। भविष्य का ज्ञान कभी नहीं करना, भूतकाल का भी नहीं करना। गया वो तो उसका ज्ञान करके क्या करेंगे अपन? वर्तमान को, वर्तमान की पल सुधारना। हम वर्तमान में दृष्टा हैं, दृष्टा बने रहो बस। हम पहले भी वही थे, भविष्य में भी वही रहने वाले हैं, पर हमको दृश्यों में बड़ी रुचि है, क्योंकि जो ज्ञान होगा वो तो पर्यायी होगी ना, और पर्याय तो दृष्टा का दृश्य ही, और कुछ नहीं है। बहुत रुचि होती है। तो कहते हैं ये ही नहीं विभंग, ये कोई विपरीत ज्ञान नहीं है हमारा, विपर्यास नहीं है। कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। अभंग का मतलब कई नर पंचम काल में, इस काल में भी बहुत से पुरुषों ने, महात्माओं ने इस अभंग अखंड वस्तु को देखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु अभंग, कि जिसका भंग नहीं होता है, जो बदलती नहीं है, अविनश्वर है, शाश्वत है, उस वस्तु को देखा है, मतलब अनुभव किया है। दिखती नहीं है, अनुभव होता है, अर्थात उनको दृष्टा का निर्णय हुआ है, त्रिकाली तत्व का उनको निर्णय हुआ है। ये शिविर कल से चालू हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, उतल पुतल होगा, और फिर 3 दिन बाद क्या होगा? यहां पर शांति होगी, सब चले जाएंगे।
तो 3 दिन शांति नहीं होगी क्या? આપણે કોઈ કાર્યક્રમ આવે અને કાર્યક્રમ ચાલતું પતી જાય ને ત્યારે આપણે કે હાશ, जब तक वो पूरा नहीं होता है ना तब तक शांति पड़ती नहीं। कारण अभंग, इसके ऊपर विश्वास नहीं। क्या हम कुछ कर रहे हैं उस समय हम नहीं है? परंतु उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, इसलिए हम शांत भाव से कुछ नहीं कर पाते, हम भावावेश में आ जाते हैं। तो हजारों लोगों हो तो भी अपने वैसे ही चर्या, वैसे ही शांति, वैसे ही सब, कोई नहीं हो तो भी वैसे ही। ये दृश्य 3 दिन के लिए पड़े और फिर वो दृश्य गायब हो गए। ये दृष्टि, जो भी विशेष है वो हमेशा उत्पन्न होता है और उसका नाश होता है, और सामान्य हमेशा बना रहता है। इसीलिए अगर हमको शाश्वत आनंद चाहिए, हमेशा शांत रहना है, तो हमको सामान्य की दृष्टि रख करके हमेशा रखना, और उसके लिए हमेशा दृढ़ता रखना कि मेरे को हर परिस्थिति में सहज शांत बने रहना है। कि घर में लगन है तो व्यक्ति, शादी है ना घर में, तो व्यक्ति किसकी तैयारी करता है पता है? ये काम कैसे करूंगा, उसको वो कैसे करूंगा, ये सारी तैयारी करता है 1 महीने से पहले। पर साधक और गृहस्थ में जो ज्ञानी रहते हैं वो क्या तैयारी करते हैं कि उस समय मुझे शांत कैसे रहना, उसकी सोचते हो। ये सब परिस्थितियां आएगी, बहुत से लोग भी आएंगे, बहुत मिलने जुलने वाले भी आएंगे, बहुत से व्यवहार के काम भी करने पड़ेंगे, सब काम करने पड़ेंगे। वो प्लानिंग ऐसा करता है। अभी अंदर से उपसर्ग आने वाला है, और एक्चुअली बाहर वाले उपसर्ग नहीं हो, अंदर हम प्रभावित हो रहे हैं वो हमारा उपसर्ग है। तो हम उसमें कैसे निकलें? ज्यों की त्यों, कबीर जी कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी सदरी। और बड़े बड़े काम करके फिर ज्यों की तो निर्लेप निकल जाते हैं महात्मा पुरुष, उसका जरा सा भी संस्कार नहीं पड़ने देते। आयान गया, बाद में पूछो क्या हुआ था, क्या कुछ नहीं, सपना था पूरा हुआ, अपना नहीं था वो। भरत जी 6 खंड जीत के आए, और कितने साल लगे पता? 6 खंड जीतने 60,000 वर्ष। परंतु भरत जी जैसे थे वैसे ही निकल करके आए, अपने आत्मा के ऊपर एक दाग नहीं लगने दिया उन्होंने जरा भी। ये अपने अभंग, हमेशा एक विशिष्ट शांत सहज भाव में रहने का अभ्यास करना। त्या अल्पभाषी थो, अल्पहासी थो, अल्प आवकारी थो, ऐसा लिखा है कृपालुदेव ने। वो क्यों? ये दृष्टि है इसलिए। और ये दृष्टि एक बार खिल गई तो सहज होता। और उससे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के प्रति प्रेम कम हो जाएगा, कि किसी के प्रति आदर कम हो जाएगा, कि उत्साह कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं। हमेशा उत्साह में ही दिखेगा, परंतु अभ्यंतर शांति को पकड़ रखा है। अपने मन को जरा भी आकुल व्याकुल विकारी नहीं होने देता। बस आकुलता व्याकुलता है वो अंदर की चीज है, वो अपने को पता पड़ जाती है कि कौन सी चीज अपने को प्रभाव डाल रही है अंदर से। तो अंदर से आकुल व्याकुल नहीं होना। जो होगा क्या होगा? अरे मारा छे ने મને બોલવાનું કીધું છે 5-10 મિનિટ, શું બોલીશ? અને જો કંઈક બીજું ને બીજું બોલાઈ ગયું તો
अब वो जब से वो उसको काम सौंपा है तब से क्या हो गया उसके, आकुलता व्याकुलता। और किसी को बोलने का नहीं कहो तो आकुलता व्याकुलता, दोनों है ये दोनों पक्ष। तो क्या होगा उस समय की, जिस समय का जो पर्याय जो समय होता है उसकी योग्यता के अनुसार जो हुआ होगा। अपन कितनी भी तैयारी कर लेने तो भी वहां जाकर के जो होना है वही होता है। बहुत से को स्टेज का भय होता है, किसके कारण बताए? अभिमान के कारण। वो अभिमान है आपका, कहीं बीजू बुलाए जैसे तो શું થશે, क्या होगा? इसका मतलब आपको महात्म्य क्या है पता है? आपके विषय का महात्म्य नहीं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरों का ही महात्म्य पड़ा हुआ अभी जीव को। मुझे मेरा सत्य प्रतिपादन करना है और मैं आराम से शांत भाव से करूंगा। किसी को अच्छा लगे ठीक है, किसी को बुरा लगे तो ठीक। आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। ऐसे हर एक समय देखना, और ऐसा काम नहीं लेना कि जिससे हमको आकुलता व्याकुलता हो। अगर हमारी वो नीची स्टेज है ना, भाई हमारे थी नहीं, तुम करो। हम अपने आत्मा का नुकसान करके कुछ भी नहीं करना चाहते। हम अपनी आत्मा की शांति को भंग करके कुछ करना चाहते नहीं। देखी वस्तु अभंग, और ये अंदर वो शांति हमेशा खिली रहती है। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके नूर। जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, मैं संतन को दास। जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। साधना करनी है, अगर वास्तव में आत्मा की साधना करनी है ना, तो बहुत कुछ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज पकड़ लेना जीवन में, आत्म शांति। शांति के सहारे सहारे हम उस तक पहुंच जाएंगे। हमको केवल एक ही लक्ष्य रखना है कि मेरी अंदर की शांति भंग नहीं होने देनी, बस। और वो तो अपने को पता पड़ जाता है ना, कब कब अपन अशांत हो जाते हैं, कैसे कैसे विकल्पों से हम अशांत हो जाते हैं। बहुत कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतना एक पकड़ लिया ना बस। वास्तव में तो आत्मा तो कहीं गया ही नहीं, हमारा तो दृष्टा ज्ञाता हम है ही, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। पर अभी वो अज्ञान के कारण से आवृत है, अशांत है। उसको अपने को शांत रखना है, उसका शांत ही स्वभाव है, क्यों छोड़े? ये गुरु गम कहलाता है। गुरु के पास रहते हैं तो हमेशा उस चीज को पकड़ा करके रखता है वो बराबर, कि आज तुमको बोलने के लिए कहा था, बोले तो अच्छा, पर आत्महत्या करके। हमको पता पड़ गया है तू कहां चुका था। दुनिया को पता पड़े कि नहीं पड़े, गुरु को पता पड़ता है। दुनिया ताली बजाएगी, गुरु जी नाराज। गुरु जी के पास वो जाएगा ना, वो नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे ही नहीं। गुरुदेवा आपने कहीं कहीं वो लाग्યું, वो तो पता पड़ता, चुकता है तो पता पड़ता है।
और वो चूक कौन बताएगा? कहां उसकी शांति भंग हो गई थी, कहां वो ओवर इमोशनल हो गया था, ये सब दृष्टिवान व्यक्ति को पता पड़ता है। सामान्य लोगों को पता पड़ेगा ही नहीं ये सारी चीजें। वो देवकरण जी महाराज, उनको व्याख्यान बहुत अच्छा देते थे, मतलब बहुत से लोग आते थे उनकी व्याख्यान में। तो नीचे व्याख्यान करके फिर प्रसंग पढ़ा मैंने। फिर लघुराज स्वामी उनके गुरु थे, बड़े थे वो सीधे। तो उन्होंने, विषय भी अच्छा था, बहुत लोगों ने बहुत प्रशंसा करी। और अभिमान वधारीने આવી ગયા गए, और वो तो पानी पानी हो गया व्यक्ति। इतने लोग देखो मेरी प्रशंसा कितनी कर रहे हो, उनको भी आके कहते हो महाराज घणो सारो व्याख्यान आपे छे, पर वो कहां चूक रहे हैं वो उनको पता है, वो गुरु को ही पता है कि तुम्हारी शांति कहां भंग हो रही थी। इसलिए गुरु के बिना हमारी गाड़ी चलती ही नहीं है। एक मिनट एक सेकंड नहीं चलेगी, एक डगलो આપણે ચાલી શકતા નથી। और हमेशा सशरीर गुरु हमारे साथ नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या सशरीर? वो तो रहने वाले नहीं। तो हमको सुबह बात हुई थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई की, ऐसे गुरु को बिठा देना, कोई एक में खो जाना, वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे अपना। अथवा अपने अंदर के गुरु को जगा देना। एक बार सच्चा आत्मिक शांत भाव की अनुभूति होती है तो वो शांत भाव को छोड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए पहले प्रयत्नपूर्वक शांति का अभ्यास करो, फिर वो छूटेगा नहीं। इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी से बोलना भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना, अपनी भावना व्यक्त नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक अलग रहस्यात्मक शांति है जो ज्ञान की जागृति से उत्पन्न होती है, एक सहज वस्तु है। बस उसकी तरफ अपना लक्ष्य हो और उस अखंड वस्तु का हमेशा लक्ष्य रखें। बार 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 अपने नित्य स्वरूप को विचारें, हर घटना में विचारें कि मैं स्वाध्याय हॉल में गया उसके पहले मैं था कि नहीं, स्वाध्याय हॉल में आया उस समय मैं हूं कि नहीं, यहां से उठ के जाऊंगा तो मैं रहूंगा कि नहीं। वो तो एक ही है, सर्वत्र वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं यहां। बस उसको पकड़ो, वो हर हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। काय की प्रवृत्ति हो तब भी, वचन की प्रवृत्ति हो तब भी, मन की प्रवृत्ति हो तब भी, मन में जो विचार वगैरह चल रहे हैं उस समय भी हम हैं। ये बिना नयन की बात है और ये मात्र अनुभव की बात है। दुनिया में किसी भी वस्तु को जैसे हमको अनुभव करना है ना, तो हमारे से बाहर किसी भी वस्तु का अनुभव करना है तो वो सब परोक्ष अनुभव है, वो सब परोक्ष है। उसके लिए किसी साधन की जरूरत रहेगी, पर अपना अनुभव हम हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं। इसलिए आत्मा नित्य प्रत्यक्ष, ऐसा आत्मसिद्धि में लिखा, हम हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं। अब देखो, जो हमेशा प्रत्यक्ष है वो परोक्ष जैसा हो गया है, और जो परोक्ष है वो प्रत्यक्ष जैसा हो गया। हम कहेंगे તમે કોબા ગયા છો? હા કોબા। अच्छा તમે પેલી સાહેબજીની પેલી મૂર્તિ છે ને એ જોઈ? તમે प्रत्यक्ष જોઈ? क्या कहेंगे? मैंने प्रत्यक्ष देखी।
अब वो जब मूर्ति देख रहे हैं, उस समय मूर्ति प्रत्यक्ष है कि देखने वाला प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष कौन है? मूर्ति प्रत्यक्ष है कि देखने वाला प्रत्यक्ष है? मूर्ति आंख से देखी जा रही है, और जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है, इसलिए वो तो परोक्ष है, पर उसको देखने वाला जो दृष्टा है वो प्रत्यक्ष है। तुम देख रहे हो ना, मूर्ति पर ध्यान है, मूर्ति को देखने वाले पर। इसलिए जब समाधि लगनी होती है ना, समाधि, तो किन विचारों से समाधि लगती है कि पहले तो एकाग्रता की सिद्धि के लिए भगवान की मूर्ति का अवलंबन लिया जाता है, क्योंकि मन को भटकाना है। कोबा गए थे ना, वो साहिब जी की मूर्ति थी, ऐसे उसके पैर थे, ऐसे उसकी आंखें थी, ऐसे उसके हाथ थे, इस प्रकार का आसन था, ऐसे उसका। पहले तो एकाग्र होने के लिए ऐसा करना है, और जब आपको निर्विकल्प होना है, ऐसे थे न वैसे थे, सब छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या दृष्टि करनी पड़ेगी? ये मूर्ति जिसमें सहज रूप से दिखती है वो मैं हूं, ये मूर्ति मैं नहीं। ये अभ्यास बार 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 लगातार, ये मैं वो 10-10 मिनट का कहता हूं, ये यही चीजें हमने परोक्ष अभ्यास बहुत किए, और अपना जो हमेशा प्रत्यक्ष वस्तु है उसके हमेशा दिन में 10-10 मिनट 5-5 मिनट अभ्यास करो, फिर देखना परिणाम कितना जल्दी आता है इसका। हमें अपने दृष्टा का एहसास बना रहेगा हमेशा। आंख बंद करके बैठ जाएं, मैं हूं ये एहसास तो सबको है ना, हम हैं वो तो बराबर सबको एहसास है ना, तो बस जो है उसकी अनुभूति करो, और इस बीच में जो आता है उसके प्रति एकदम उदासीन हो जाओ। जो ये सहज ज्ञान में आ रहा है ना, उसको सहज जानता है वो मैं हूं, और वास्तव में तो वहां वो प्रयत्न भी नहीं करना कि ये है ना मैं उसका ज्ञाता हूं, वो प्रयत्न भी नहीं करना, एक मात्र एक अस्तित्व की अनुभूति की तरफ लक्ष्य देना। मैं हूं ये अनुभव में आ रहा है, बस ज्ञाता ज्ञेय कर देंगे ना हम, तो फिर से द्वैत में फंस जाएंगे। ये इतना पावरफुल प्रयोग है, ये प्रयोग सब कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने में 1 पैसे का कुछ लगता नहीं, और 3 लोग का नाथ मिलता है उससे। गाने का कष्ट नहीं, भक्ति करने के वो तंबूड़े तोड़ देने पड़ेंगे इसमें, पढ़ने का कष्ट नहीं, केवल आंख बंद करके सहज जो मैं मूल में हूं, 6 महीने तक प्रयोग करके देखो ईमानदारी से। दिन में 4 बार 10-10 मिनट, हर 3 घंटे 4 घंटे के अंतराल में यह प्रयोग करके देखें अपन। मैं गारंटी देता हूं, कृपाणु देव की साक्षी में और अमृतचंद्राचार्य की साक्षी में, इन सब की गारंटी हो, सबने गारंटियां दे रखी है ये सारी चीजें। अगर सम्यक प्रकार से सीरियस होकर के जगत की वासनाओं को अभिप्राय से निकाल करके ये प्रयोग 6 महीने तक चला अपना, फिर आकर के कहेंगे कि मेरे को अब दृष्टा का एहसास होता है। अब उसकी बाकी के 3 घंटे ना, आपने 3 घंटे में प्रयोग किया वो, और बाकी के 3 घंटे में वो बना रहेगा, आपके प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके ऑफिस में आपको ऊंचा नीचा बोल गया तो आप चुप। आप जानबूझ करके भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। साहिब जी ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, पता है क्यों छोड़ दिया? पहले गाड़ी चलाते थे साहिब जी, और गाड़ी चलाना छोड़ दिया इसी कारण से। वो गाड़ी चलाते और चलाते चलाते स्वरूपानुसंधान, यही स्वरूपानुसंधान है। और ऐसा करते करते वो
दृश्य के प्रति जो उपेक्षा होती है, दृश्य दिखता ही नहीं है। अब सामने कोई आ गया, दिखा ही नहीं, तो कभी कभी झटके, एक दो बार घटनाएं भी ऐसी हुई, तो अब गाड़ी नहीं चला सकते हम, हो सकता है हमारी असावधानी के कारण, और डॉक्टरी क्यों छोड़ी पता है, न्याय नहीं कर सकते। ऐसे प्रयोग अगर आप 4 महीने तक, अरे 2 महीने तक करके देखे ना, घर के काम अपने आप छूटेंगे। आ काम भाई अघरू है, आ मारती थाए। ये उपाधियां छोड़ने का तरीका, हम क्या पहले उपाधियों पे लगे हुए, पहले ये छोड़ूंगा तब होगा, ऐसा नहीं। पहले पॉजिटिव अप्रोच करो, वो अपने आप छूटेगी। आप मारती नहीं था भाई, तुम करो। ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, कुछ नहीं होगा। ये दीक्षा है, इसी का नाम असली दीक्षा है। ये ऐसी अवस्था आ जाती है, तब ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती। हम जहां हैं वहां पॉजिटिव होकर के इस बिना नयन की वस्तु को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न अपने छोटे छोटे प्रयोगों से करते रहे। કોઈને પ્રશ્ન છે? આમાં ઘણાને ઉગતા હોય છે પ્રશ્ન, પાછળથી પૂછતા હોય તો કોઈ ક્વેરી હોય, બાકી એકદમ સ્પષ્ટ બાત. सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज. सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय. आनंद घन. ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान. शांति शांति शांति. जय सद्गुरु.